اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے شہید بابری مسجد کو لے کر۔ جی ہاں، بابری مسجد ملکیت کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ ہائی کورٹ کے سابق جج مرلی دھر کا فکر انگیز بیان سامنے آیا ہے۔ مرلی دھر نے کہا کہ بابری مسجد ملکیت پر عدالتی فیصلہ غیر منطقی تھا۔ سابق وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ بابری مسجد انہدام روکنے میں ناکام رہے تھے۔ انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ اس وقت الیکٹرانک میڈیا کثرت کے بجائے ہندو مسلم سوالات کو چھیڑتا رہا۔ خیر، یہ پہلی خبر یقیناً بڑی خبر ہے کہ ہائی کورٹ کے سابق جسٹس مرلی دھر نے یہ بیان دیا ہے کہ بابری مسجد ملکیت پر عدالتی فیصلہ غیر منطقی تھا۔ مولانا ارشد مدنی نے بھی اس وقت صاف طور سے یہ کہا تھا کہ عدالت نے فیصلہ سنایا ہے، انصاف نہیں کیا ہے۔ ملک کے مسلمانوں نے امن کے ساتھ بھی اس بات کو مان لیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بابری مسجد کا فیصلہ 30 سال کے بعد جب آیا، پورے ملک میں ایک پتھر بھی کسی مسلمان نے نہیں پھینکا۔ مسلمانوں کی طرف سے کوئی دھرنے، آندولن، کوئی احتجاج، کوئی دنگے فساد کا ماحول، دھمال کا ماحول بالکل نہیں بنا، کیونکہ 30 سال تک مسلمان یہی کہتا رہا کہ ہمیں عدالت پر بھروسہ ہے اور عدالت جو فیصلہ کرے گی قبول ہے۔ مگر 30 سال کے بعد میں عدالت نے بڑا عجیب و غریب فیصلہ سنایا۔ ایک طرف عدالت یہ بھی کہہ رہی تھی کہ بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کر بنائی نہیں گئی، یہ بھی کہہ رہی تھی کہ بابری مسجد کو شہید کرنے والے آتنکی ہیں، مجرم ہیں، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جب بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی تو پھر مندر بابری مسجد کی جگہ پر کیسے بنے گا؟ خیر، عدالت نے فیصلہ کر دیا۔ مولانا ارشد مدنی نے بھی اس وقت کہا تھا کہ عدالت نے فیصلہ سنایا ہے، انصاف نہیں کیا ہے، اور آج پھر سابق جسٹس مرلی دھر کہہ رہے ہیں کہ بابری مسجد ملکیت پر عدالتی فیصلہ بالکل غیر منطقی تھا، اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ اتر پردیش کلیان سنگھ بابری مسجد انہدام روکنے میں پوری طریقے سے ناکام تھے۔ دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ملک کے نائب صدر جمہوریہ کے لیے انتخاب ہونا تھا۔ نائب صدر جمہوریہ دھنگڑ انہوں نے استعفیٰ دیا بیماری کا بہانہ بنا کر۔ آج تک نائب صدر جمہوریہ غائب ہے، اب ان کی جگہ پر الیکشن ہو گیا، اور خبر آ رہی ہے کہ سی پی رادھا کرشنن ملک کے نائب صدر منتخب کر لیے گئے۔ انڈیا اتحاد کے امیدوار جو تھے سابق جسٹس سدرشن ریڈی، ان کو 152 ووٹس سے شکست انہوں نے دی ہے۔ خیر، این ڈی اے کے امیدوار اور مہاراشٹر کے گورنر سی پی رادھا کرشنن کو ہندوستان کا نائب صدر منتخب کر لیا گیا ہے۔ نائب صدر کے اس انتخاب میں مجموعی طور پر 788 لوگوں کو ووٹ دینے کا اختیار تھا، جن میں سے 781 لوگوں نے حصہ لیا۔ ووٹنگ کا فیصد 98.2% رہا۔ مجموعی طور پر 767 ووٹ ڈالے گئے، جن میں 15 ووٹ انویلڈ قرار دیے گئے اور 752 ووٹ قابل قبول رہے۔ اس طریقے سے جب ووٹوں کی گنتی ہوئی تو رادھا کرشنن کو 452 ووٹ ملے۔ انہوں نے اپنے حریف کو 152 ووٹوں سے شکست دی اور سی پی رادھا کرشنن اس ملک کے وائس پریزیڈنٹ بنا دیے گئے ہیں۔
नाज़रीन, मालेगांव बम धमाका 2008, बड़ा कब्रिस्तान आपको याद होगा। जमीयत उलमाए हिंद ने बड़ी मजबूती के साथ उस केस को लड़ा और जमीयत ये सब काम करती है। अभी आपने देखा होगा 2 महीने पहले 5 जवान जिनको फांसी की सजा निचली कोर्ट ने सुनाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनतों से 5 जवानों की फांसी की सजा टली, बाइज्जत रिहा हुए और 7 को उम्र कैद की सजा थी, उनकी उम्र कैद की सजा भी खत्म हुई, वो बाइज्जत रिहा हुए। लेकिन मालेगांव बम धमाके में आप जानते हैं कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर नामी एक औरत जिसके सर पर बीजेपी का हाथ था, बीजेपी ने इस औरत को, जिस पर कई बेकसूरों को मारने का बम ब्लास्ट के जरिए से इल्जाम था, बीजेपी ने इस औरत को भी भोपाल से टिकट दिया पार्लियामेंट का और पार्लियामेंट तक पहुंचा दिया। यह हमारे मुल्क की बदनसीबी है। और फिर अभी कुछ दिनों पहले मालेगांव बम धमाका 2008 का जब फैसला सामने आया, उस फैसले ने सबको मायूस कर दिया कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत तकरीबन तमाम के तमाम मुजरिमीन बाइज्जत रिहा कर दिए गए। लेकिन अब खबरें आ रही है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत 7 मुलजिमीन की रिहाई के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की गई है। यानी इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में, NIA अदालत के फैसले को मुंबई हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है जी हाँ, पड़ोसी मुल्क नेपाल। लेकिन मैं नेशनल न्यूज में उसकी खबर बता रहा हूं क्योंकि वह हमारा इतना जबरदस्त पड़ोसी है कि वहां हमें जाने के लिए ना वीजा लगता है ना पासपोर्ट लगता है। तो गोया कि वो नेशनल न्यूज ही में मैं उसको सुना दे रहा हूं। आप जानते हैं गुज़िश्ता कल भी मैंने बताया कि नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जनता सड़क पर उतर आई और जनता ने वो एहतजाज किया कि पार्लियामेंट को आग लगा दिया। और फिर हाल ये हो गया कि सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, मगर सिर्फ सरकार को फैसला वापस नहीं लेना पड़ा। कल मैंने सुनाया था कि गृह मंत्री वजीर दाखिला ने इस्तीफा दे दिया और आज मैं आपको खबर सुना रहा हूं कि नेपाल में शदीद एहतजाज के दरमियान वहां के प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम ने भी इस्तीफा दे दिया। KP शर्मा ओली ओहदे से मुस्तफी हो गए और बैरून मुल्क रवानगी की तैयारी हो गई है। सदर ने भी इस्तीफा दे दिया। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट और रहनुमाओं के घरों को आग के हवाले कर दिया। खैर, अब आप जरा थोड़ा सा इस खबर पर अलग अंदाज में ध्यान दीजिए। 18 लोगों की मौत हुई तो मारे गैरत और शर्म के उनके वजीर दाखिला गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। मुल्क में अनकंट्रोल और बेकाबू हो गई भीड़। वजीर आजम को गैरत आई, शर्म आए और कहा कि मैं इस लायक नहीं हूं, मैं मुल्क संभाल नहीं पा रहा हूं। वजीर आजम ने भी इस्तीफा दे दिया, सदर ने भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब आप हमारे बेशरम वजीर आजम को देखें, पूरा मणिपुर जल रहा है, पूरा कश्मीर जल रहा है, औरतों को नंगा घुमाया जा रहा है, पुलवामा में जवान मार दिए गए, पहलगाम में जवान मार दिए गए, गुजरात में आग लगा दी गई, बड़े बड़े पुल टूट गए, पूरे मुल्क का सत्यानाश। मगर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दूसरे गुजराती दोस्त अमित शाह की बेगैरती को सलाम कि पूरा मुल्क जल रहा है, मगर ये बेशरम इस्तीफा देने को और गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो सत्ता में आई है, वोट चुरा कर सत्ता में आई है। इसलिए राहुल गांधी ने नारा लगाया, वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी ने नारा लगाया, वोट चोर गद्दी छोड़। यह नारा इतना मशहूर हुआ कि पूरे मुल्क में गूंजने लगा और नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने सीधा इलेक्शन कमीशन पर भी हमला किया कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर ये सब सत्ता के साथ बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और दोनों ने मिलकर मुल्क के वोट को चोरी किया है और बीजेपी सत्ता में आई है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी माफी मांगे, तो साबिक इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया राहुल गांधी को न माफी मांगने की जरूरत है न हलफनामे की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन को अपने ऊपर उठाए गए शुबहात दूर करने के लिए खुद तहकीक करनी चाहिए। यानी साबिक इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया कि राहुल गांधी ने जो इल्जाम लगाया है कि कैसे वोट चोरी हुए हैं और कैसे इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन साथ है, राहुल गांधी के इल्जाम को आप बाकायदा तहकीक करें।
राहुल गांधी तो डंके की चोट पर संविधान को हाथ में लेकर कह रहा है कि मैं संविधान को बचाने के लिए निकला हूं, और मोदी और बीजेपी ने वोट चोरी करके इलेक्शन में घपले करके इलेक्शन जीता है। वो मेरा एक मशहूर डायलॉग है कि तोते की जान पिंजरे में, मोदी की जान मशीन में। जब तक मशीन रहेगी बीजेपी रहेगी। इसलिए जनता को यह करना चाहिए कि इतना जबरदस्त एहतजाज करना चाहिए कि मशीनों को बंद कर दिया जाए और बैलेट पेपर पर वोटिंग करवाई जाए। आइए नाज़रीन, मराठा रिजर्वेशन, आप जानते हैं कि मराठा रिजर्वेशन को लेकर मराठा लीडर जिनका वजन शायद 32-35 किलो भी नहीं है, जरंगे पाटिल, पूरे मुंबई को हिला दिया। मुसलमानों ने भी बड़ा जबरदस्त साथ दिया। जब ये जालिम जाबिर हिटलर और तानाशाह हुकूमत आजाद मैदान मुंबई ने वड़ा पाव की दुकानें और चाय की होटलों को भी बंद कर दी और मराठा भाइयों को पानी भी नहीं दी, उस वक्त मुसलमानों ने मराठा भाइयों को नाश्ते का, खाने पीने का इंतजाम भी किया। आखिर जरंगे पाटिल अपने मुतालबात को हासिल करने में कामयाब हो गया और फिर जरंगे पाटिल वहां से रवाना हो गए, मुंबई खाली कर दिया। मगर बीजेपी अंग्रेजों की चाल चलती है, डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ और राज करो। बीजेपी ने क्या किया कि ओबीसी और मराठा दोनों को लड़वा दिया और अब ओबीसी लीडर छगन भुजबल, रियासती वजीर छगन भुजबल अदालत जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ओबीसी के कोटे को छीनकर मराठा को रिजर्वेशन देना, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बीजेपी ने मराठा बिरादरी को धोखा देकर वहां से आंदोलन से उठा दिया और ओबीसी के कोटे से इनको रिजर्वेशन दे रही है, जिसको लेकर अब खुद छगन भुजबल, जो बीजेपी की ही गोद में है, यानी बीजेपी की ही मंत्री है, ओबीसी के लीडर है, अब ओबीसी के हक में आवाज उठाने के लिए वो मराठा रिजर्वेशन के खिलाफ अदालत जाने की तैयारी कर रहे हैं। पूरा बीजेपी मंडल फडणवीस से लेकर अजीत पवार तक वो छगन भुजबल को मनाने में लगे हैं। आइए नाज़रीन, बड़ी चौंकाने वाली खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हां, हमारे दोस्त और हमारे साथी और शिवसेना के कद्दावर नेता उद्धव ठाकरे के राइट हैंड संजय राउत का बड़ा बयान आया है। नेपाल के हालात का हवाला देते हुए संजय राउत ने पीएम मोदी पर हमला किया और कहा कि होशियार रहें, नेपाल जैसी सूरत हाल किसी भी मुल्क में हो सकती है, किसी भी मुल्क में हो सकती है। यह कहकर उन्होंने भारत के वजीर आजम को भी और भारतीय हुकूमत को भी खबरदार कर दिया है कि नेपाल जैसी सूरत हाल किसी भी मुल्क में हो सकती है। पीएम मोदी और बीजेपी को उन्होंने टैग करते हुए लिखा है कि पड़ोस के मुल्क नेपाल की सूरत हाल आप देख रहे हैं और ये सूरत हाल कहीं भी हो सकती है। यानी उन्होंने इशारा कर दिया कि जिस वक्त जनता गुस्से में आ जाएगी तो नेपाल में जनता ने पार्लियामेंट को भी जला दिया, मंत्रियों के घरों को भी जला दिया और वहां के वजीर आजम को इस्तीफा देना पड़ा, गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, मंत्री भाग खड़े हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर जो है वो अब बाहर मुल्क रवानगी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनका बुरा हाल मालूम है क्या होने वाला है, इसलिए उन्होंने बरसों पहले कह दिए थे, भाइयों बहनों हमारा क्या है, हम तो कभी भी झोला उठाएंगे और चल देंगे। लेकिन उसी वक्त मुफ्ती हारून ने कहा था कि मोदी जी झोला भी उठाने नहीं देंगे। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, नायब सदर जमहूरिया जिनके इस्तीफे के बाद माहौल बना और अब कल नायब सदर जमहूरिया का इलेक्शन हुआ और राधा कृष्णन जीत गए। लेकिन जगदीप धनखड़ जो नायब सदर जमहूरिया थे, उन्होंने अचानक तबीयत की खराबी बोलकर इस्तीफा दे दिया। लेकिन उस वक्त से आज तक धनखड़ गायब है। इसलिए हमारे सीनियर वकील और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा कपिल सिब्बल ने पार्लियामेंट में आवाज उठाया था कि तुमने धनखड़ को गायब कर दिया, क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी गायब करने में मशहूर है, किडनैप करने में मशहूर है। कपिल सिब्बल ने पार्लियामेंट में चीख कर कहा कि धनखड़ को सामने लाओ, कहां है धनखड़। और कमाल की बात यह है, अब खबर आ रही है, हमारे सीनियर लीडर जय राम रमेश ने जगदीप धनखड़ साबिक नायब सदर जमहूरिया की खामोशी पर तशवीश जाहिर की है। यानी उन्होंने फिक्र बताई है कि आखिर
धनगढ़ को कौन सी धमकी दी गई है? मुल्क साबिक नायब सदर के बयान का मुंतजिर है। अरे बयान तो दूर की बात, साबिक नायब सदर जमहूरिया जिस दिन से इस्तीफा दिए हैं अभी तक के जनता को भी नजर नहीं आए हैं। इसलिए जनता भी सवाल कर रही है कि धनगढ़ कहाँ है? नाज़रीन, गुज़िश्ता कल शिवना धावड़ा में गुज़िश्ता कल शानदार प्रोग्राम मरकज जामे मस्जिद में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर मुनक़िद किया गया था। ये प्रोग्राम बेइंतहा कामयाब रहा और मरकज इतना वसी होने के बावजूद जगह कम पड़ गई। मजलिस उलमा के तमाम उलमा, मुफ्ती मोहसिन साहब और पूरे जितने बड़े उलमा हैं सब के सब मेरे साथ स्टेज पर मौजूद रहे और मुक़र्रिर खुसूसी के तौर पर मुझे बुलाया गया था। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलुओं को उजागर करते हुए ख़ास तौर से मैंने नौजवानों से ये कहा कि मेरे प्यारों, जो तरीक़ा हम इश्क़ नबी ज़ाहिर करने का अपना रहे हैं ये इश्क़ नबी ज़ाहिर करने का तरीक़ा नहीं है। गैरों के तरीक़ों को इख्तियार न करो, जैसा वो करते हैं वैसा हम न करें। और मैंने ये भी बताया कि अब जितने जुलूस हम कर रहे हैं ये सिर्फ जिद में कर रहे हैं। गणपति का जुलूस 3 दिन पहले था, हमारा जुलूस 3 दिन के बाद। 3 दिन पहले हिंदू भाइयों ने खूब धूम मचाई और सड़क को लाल कर दिया, तो 3 दिन के बाद फिर हमने भी कोई कसर न छोड़ी और तीसरे दिन हमने सड़क को पूरा हरा कर दिया। यानी ये सब जिदबाजी चल रही है। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी तालीमात को, उनकी प्यारी जिंदगी को अवाम तक, हिंदू भाइयों तक पहुंचाना आपकी मेरी सबकी जिम्मेदारी है। जब मैंने परसों शीरपुर में तमाम लीडर जमा थे, डॉक्टर तुषार रंधे और पूरे अमरीश भाई पटेल और उनकी पूरी टीम जमा थी, वहां 1.25 घंटा जब मैंने प्यारे नबी की जिंदगी को बयान किया तो आखिर हिंदू भाई को माइक पकड़ कर ये कहना पड़ा कि आज हमें सचमुच प्यारे नबी की जिंदगी और उनकी प्यारी तालीमात सुनने का मौका मिला है। मैं मुसलमानों से यही कह रहा हूं कि आप प्रैक्टिकली तौर पर घर से लेकर मैदान तक और मैदान से लेकर बिजनेस, तिजारत, गलियों में, खेतों में, हर जगह आप नबी की तालीमात पर प्रैक्टिकली अमल करके दिखाओ। अल्लाह की कसम तमाम हिंदू भाई भी नबी से मोहब्बत करने लगेंगे। आइए नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त मैं जो इंटरनेशनल न्यूज़ है लेकिन नेशनल न्यूज़ में भी इसको बयान कर रहा हूँ। वो बड़ी खबर ये है, आप जानते हैं कि गज़ा के हालात को मैं लगातार बयान कर रहा हूँ और गज़ा के हालात पर बेबाक बोलने में मुझे क्या नुकसान उठाना पड़ता है ये मेरा रब ही जानता है। अवाम को खबर नहीं, मुसलमानों को भी खबर नहीं और हम बोलना भी नहीं चाहते हैं। खैर, गज़ा में जो कोई भी जुल्म और सितम हो रहा है, आप जानते हैं कि तकरीबन 2 लाख मुसलमानों को शहीद कर दिया गया है, नस्ल कुशी, जेनोसाइड हुआ है। 25 से 30 हजार तो सिर्फ मासूम बच्चों को मारा गया, 30 हजार के करीब महिलाओं को, औरतों को मारा गया। लगातार इजराइल के आतंक पर पूरी दुनिया खामोश है और मैं उन इस्लामी मुल्कों पर थूकता हूं जो मजलूम का जुल्म देखते हुए भी खामोश है और गज़ा और फलस्तीन के लिए मैदान में उतरने को तैयार नहीं। खैर, खबर ये आ रही है कि हमास लीडरान को निशाना बनाने के नाम पर कतर पर भी इजराइल ने हमला कर दिया। कतर पर भी, हालांकि कतर एक मजबूत मुल्क है। जब आज से 3 साल पहले इजराइल ने अपना आतंक शुरू किया था, उसी वक्त मैंने कतर, ओमान, यमन, सऊदी अरब और लेबनान तमाम मुल्कों से कहा था कि तमाम बेगैरत इस्लामी मुल्कों के जिम्मेदारान से मैंने कहा था कि मैदान में आ जाओ, वरना धीरे धीरे सबकी बारी आएगी। शाम की भी बारी आ गई, इराक की भी बारी आ गई, लेबनान पर भी हमले शुरू हो गए। जी हां, और अब कतर पर भी इजराइल ने हमला कर दिया हमास लीडरान को निशाना बनाने के नाम पर। दोहा में गज़ा जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात और बातचीत हो रही है, लेकिन इजरायली धमाकों ने कतर को हिलाकर रख दिया है और एक कतरी सिक्योरिटी अफसर समेत 6 दीगर शहीद हुए हैं। यह हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की सख्त खिलाफ वर्जी है। अब तमाम इस्लामी मुल्क सिर्फ जमा होते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, इजलास करते हैं, मुज़ाकरात होती है, बैठक होती है और गुस्से का इजहार होता है। अरे मैं कहता हूं बेशर्मो, 57 मुल्क हो,
57 में कि 50 खामोश रहो, सिर्फ 7 भी मुल्क अगर ईमानदारी से मैदान में आते तो इजराइल या अमेरिका या दुनिया के किसी मुल्क की मां ने दूध नहीं पिलाई कि किसी अहले ईमान पर वो हमला करे। मगर क्या करें, अब भी न जागे तो फिर जितने बाकी है उनका भी नंबर आएगा। डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ब्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।